guys, hello everyone, how are you doing? So welcome you all in this new episode of JEE Sprint 2.0, and today we are going to do what? Electrostatics, exactly. So my name is Gaurav Gupta and we are taking this session from Bangalore. So those who are seeing me for the first time, I think most of you are seeing me for the first time, let me give some introduction of mine. So my name is Gauravv Gupta and I have studied from NIT Rourkela, did my mechanical engineering, and I have qualified this prestigious exam of GATE with 99.5 percentile. I have been teaching for last 4 years and I have taught and mentored 5,000 plus students. But these are just credential guys. We are here for the huge support that you have shown towards Vedantu, right? Chalo. So let's start the session guys. So before starting the session, first of all, I like to tell you about this Vedantu app. So if you have not downloaded the app yet, please go to the Play Store and download it because it is very useful. You will be getting the free doubts here. You can ask the doubts and the mentors will be clearing the doubts. Also, you will be getting the study materials and also the classroom resources, right? So it is very useful app. Go to the Play Store and download it as soon as possible. Okay. So let's move ahead guys. Yeah. So also the features of app are like you will get daily session PDF in app, right? So whatever sessions we are taking in YouTube, you will be getting the session PDF. Also, we are going to have the mini mock tests on 1st of April and 3rd of April. So this also you will be getting through the app only. And also there is a mega test. As you can see, this will be the replica of your JEE mains, right? 3-hour test. So this is very useful guys. Very good for your revision. Okay. Chalo. And also guys, as we always say, if you have not subscribed yet, please subscribe to this channel, like, share. Okay, chalo. Let's start guys without any delay. So let's jump on to the first problem. This is from electrostatics, but here I am not giving any theory because basic things you already know, like the Coulomb's law and everything, isn't it? So we can just jump into the question. Whatever concept is required, I'll be telling you in between only. Read the question guys and please try to do it. Let me know in the comment box whatever answer you are getting. Chalo, start doing this. So it says two equal negative charges, right? Two equal negative charges are fixed and the points are given 0, minus a and 0, a on the y-axis. Okay. Then it says there is a positive charge q released from rest. Point is given to us, and then these are the options. We have to find out if it is simple harmonic, if it is oscillatory and whatnot, isn't it? First of all, before starting this problem, you should be very clear about what is simple harmonic motion and what is oscillatory. I mean, all simple harmonic motions are oscillatory, but what is the basic difference between them, right? It is the equation which makes the difference. So देखो, first of all, जो हमें basic knowledge होना चाहिए, right? What is that basic knowledge? So you must have studied कि simple harmonic motion is like to and fro motion, right? Like this. देखो ये pendulum ऐसे काम करता है ना, to and fro, goes and comes back. तो इसको oscillatory motion कहते हैं. But if this oscillatory motion is simple harmonic motion, then there is a condition for that. First of all, for any oscillatory motion, the force should be restoring. There should be a restoring force like we have in spring also, है ना? तो सबसे पहले जो force होगा, that should be proportional to minus of displacement. Restoring force. अगर आपने displacement इस तरफ दिया, then force will be in this direction, opposite, right? It will try to restore. For any general oscillatory equation, this equation is given by this x power n, where n can take any value. Okay. But for simple harmonic motion, there is a condition that it will be equal to just proportional to minus x. मतलब n का value कितना? बताओ. Exactly 1 है ना. So n should be equal to 1 if it has to be a simple harmonic motion. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम. तो इसने क्या क्या बोला है? माइनस क्यू चार्जेस आर फिक्स्ड एट 0, माइनस ए एंड 0, ए. ठीक है, तो इसका सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? सो लेट मी ड्रॉ द सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द एक्सिस ऑफ दिस. कोऑर्डिनेट्स दिखा देते हैं कैसे कैसे है, राइट? सो लेट्स से this is the y-axis and this is the x-axis. ऐसा कुछ है, right? So he says that minus q charge, okay, the minus q charge is there somewhere here at plus a. That means 0, a. And also one minus q charge is there at 0, minus a. मतलब यहाँ कहीं पे
0, minus a. These are the two minus q charges, right, that are present. Minus q and minus q. Now it said कि there is a plus q charge also, है ना? There is a plus q charge somewhere here at 2a, 0. 2a, 0. So this is the situation, okay? And this is the plus q charge. He has asked that if this charge is disturbed, will it perform simple harmonic motion, oscillatory motion क्या होगा, right? चलो, first of all let's draw the forces. Forces draw कर लेते हैं. So this minus q charge will attract this plus q charge. So there will be a force in this direction, है ना? Along the line joining these two charges. ऐसा कुछ, right? Line joining. Let's say this angle is theta. ये वाला force कितना होगा वो हमें चाहिए, right? What is this force? I want to generalize this case. Okay, I want to generalize this case. Let's say we are saying this distance is x. कुछ भी distance x है, वहां तक उसको displace कराया, right? अभी 2a को भूल जाओ एक बार. This distance is x. Okay. How much will be the force first of all? यहां से देखो ये वाला distance कितना है? This is a, this is x. तो ये जो distance होगा perpendicular, this one, right? ये वाला distance, line joining these two, that will be equal to how much? Under root a square plus x square. है ना? This will be equal to under root a square plus x square. Then how much is the force between these two charges? Coulomb's law से force निकाल लो. So that force will be given by k into small q into capital Q. Direction I have already taken care of, तो minus नहीं लिख रहा मैं. Divided by distance का square. तो वो क्या हो जाएगा? a square plus x square. That's it. ये force है, right? Similarly, this force will also be there for this charge. ये चार्ज भी तो इस चार्ज पे ऐसे फोर्स लगाएगा, राइट? इज दिस फोर्स सेम? एग्जैक्टली, दोनों फोर्सेस सेम है. ये वाला फोर्स भी उतना ही होगा, इजंट इट? अब देखना ध्यान से. सो दिस इज ऑल्सो एफ, दैट इज ऑल्सो एफ, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सब कुछ सिमेट्रिक है ना? बट वी आर इंटरेस्टेड इन द नेट फोर्स. तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हाउ विल बी द नेट फोर्स, है ना? कौन सी डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स. दिस इज वेरी इजी, है ना? बहुत आसानी से देख लो. इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, वट एवर फोर्स इज देयर, ये वाला, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा इस डायरेक्शन में, राइट? ऐसे, एंड वन विल बी इन दिस डायरेक्शन. सेम इज द केस विद दिस फोर्स. वन कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, वन कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन. ये वाले जो कंपोनेंट्स होंगे परपेंडिकुलर वाले, दे विल गेट कैंसल्ड आउट, है ना? क्योंकि इक्वल फोर्सेस हैं, दे विल गेट कैंसल्ड आउट. ये वाले कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे. मतलब कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं? एफ कॉस थीटा वाले. देखो ध्यान से, इसका कंपोनेंट इस तरफ एफ कॉस थीटा, राइट? तो देखो क्या लिखेंगे अब हम. अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए, एफ नेट, इफ आई वांट दिस, देन व्हाट आई विल राइट? दिस फोर्स इनटू कॉस थीटा. वो एक फोर्स का हुआ, इजंट इट? दैट इज फॉर वन फोर्स, बट देयर आर टू फोर्सेस. तो दोनों का कंपोनेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ दिस, राइट? सो ट्वाइस ऑफ k small q capital Q divided by a square plus x square into cos theta, है ना? ये आ जाएगा यहाँ पे cos theta. But now there are two variables. x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है. Let's try to bring it down into one variable system. तो cos theta का वैल्यू यहां से निकाल लो आप, isn't it? From this triangle, देखो ये वाला ट्राइंगल कैसे बन रहा है? It is something like this. ये a है, this is x and this is under root a square plus x square, है ना? So this angle is theta. तो cos theta का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? How much will be cos theta guys? Exactly x divided by this hypotenuse, right? तो देखो क्या मिल रहा है मुझे, 2kq capital Q into x cos theta से आ गया, divided by, अब ये क्या था? a square plus x square and then it will be under root a square plus x square. तो a square प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, है ना? पावर 3/2. ये है आपका एफ नेट. अब देखो वन थिंग, यू हैव गिवन डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, राइट? इधर डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसे एक्स, बट फोर्स कहां पे लग रहा है? ऑपोजिट. तो विल देयर बी अ माइनस साइन? ऑब्वियसली देयर विल बी अ माइनस साइन, बिकॉज दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग इन नेचर. रीस्टोरिंग इन नेचर हो गया, दिस इज ऑसिलेटरी. बट इज इट सिंपल हार्मोनिक? ध्यान से देखो, नो, बिकॉज इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स. एक x का फैक्टर नीचे भी है, राइट? एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो x के प्रोपोर्शनल नहीं है वो, राइट? इसलिए दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक बट इट इज ऑसिलेटरी. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? देख लेते हैं जल्दी से. एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन.
ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, अंडरस्टूड दिस गाइस? अमेजिंग अमेजिंग, योर रिस्पॉन्स इज अमेजिंग. आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स, पढ़ो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेसिक चीज है, वहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इन जेईई मेंस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पढ़ो इस क्वेश्चन को. टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर गिवन ए एंड बी. सो लेट मी ड्रॉ द सिनेरियो, साथ साथ में करते जाते हैं, राइट? सो देयर आर टू कंडक्टर्स ए एंड बी. लेट मी ड्रॉ इट हियर. ये कंडक्टर है ए एंड दिस कंडक्टर इज बी एंड दे आर हैविंग इक्वल चार्ज. तो इक्वल चार्ज क्यू दे देते दोनों को, राइट? सो दिस इज ऑल्सो हैविंग क्यू एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग क्यू. दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर. तो डायमीटर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वी कैन कंसीडर दैट एज द पॉइंट चार्जेस, है ना? ठीक है, देन देयर डायमीटर्स, हाँ, फोर्स बिटवीन देम इज एफ. ठीक है, तो अभी इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? एफ. ओके, अब देखो, अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर C इज अनचार्ज्ड. अब यहां पे एक कोई C भी आ गया बेचारा, कोई C कंडक्टर भी है, बट दिस इज अनचार्ज्ड. आइडेंटिकल है, डायमीटर इज सेम, सब कुछ सेम है, बट दिस इज अनचार्ज्ड. इसके पास, बेचारे के पास कोई भी चार्ज नहीं है. तो देखो क्या कर रहा है, स्फीयर C इज फर्स्ट टच टू A एंड देन टू B. पहले इसको A से टच कराया, फिर B से, एंड देन ही इज आस्किंग एज अ रिजल्ट व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन A एंड B. पहले जो फोर्स F था, क्या वो चेंज हो जाएगा? अगर चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 ऑप्शंस यू हैव, राइट? चलो शुरू करते हैं, समझते हैं इसको कैसे करना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू विल टच दिस C कंडक्टर विथ A कंडक्टर, है ना, इसको जब आपने A से टच कराया, सो लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज C, राइट? इसको ऐसा ड्रॉ कर लो, दिस इज C, टच कराया. सो दिस वाज हैविंग अ चार्ज Q, दिस वाज हैविंग अ चार्ज 0. When two spheres are identical or two conductors are identical and when you touch them there will be a charge transfer through the mode of conduction, है ना? आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन. तो यहां पे जैसे ही टच कराया कंडक्शन होगा. And when two objects are similar in nature charges equally divide. जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है. What is the total charge? Q. तो इसको कितना चार्ज मिल जाएगा? A को. A will get a charge of Q/2 और C को भी कितना चार्ज मिल गया? Q/2. काम खत्म. ठीक है, तो अब इस A बेचारे के पास तो Q है ही नहीं, अब तो इसके पास कितना है? Q/2. अब बारी है B की, अब B को परेशान करेंगे, है ना? सो C इज नाउ हैविंग Q/2. अब ये पहले अनचार्ज था, अब ये कुछ चार्ज लेके आएगा B के पास कि भैया मेरे पास तो Q/2 का चार्ज है. When you touch B and C, what is the total charge? Q plus Q/2. कितना है टोटल चार्ज? Q plus Q/2 which is 3Q/2, है ना? इन दोनों के पास जो टोटल चार्ज था वो है 3Q/2. दैट विल इक्वली डिवाइड ऑन बोथ ऑफ देम. तो B के पास कितना चार्ज आ जाएगा? अब इसका हाफ, है ना, इक्वली डिवाइड हो गया. सो दिस चार्ज विल बी 3Q डिवाइडेड बाई 4. तो C ने क्या किया? दोनों का चार्ज चेंज करा दिया. A के पास अब कितना चार्ज है? Q/2. B के पास कितना चार्ज है? 3Q/4. एंड वी नो फ्रॉम कोलॉम्स लॉ कि जो फोर्स होता है ना, द फोर्स is proportional to product of their two charges. प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बराबर होता है. तो देखो प्रोडक्ट लो, Q/2 3Q/4. जो पहले Q और Q थे वो अब कितने हो गए? 3/8, है ना? 3/8. तो इट विल ऑल्सो चेंज बाई 3/8, अ फैक्टर ऑफ 3/8. तो फाइनल फोर्स कितना आ जाएगा? 3F/8. ओके, सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम कोलॉम्स लॉ, लेकिन ये आना चाहिए. सो जनरली बच्चे क्या करते हैं? You neglect the first portion of electrostatics, right? Conduction, induction छोड़ दिया, बेसिक चीज नहीं समझी. But if you understand the basics, it can come in form of MCQ, right? ऐसे फ्रेम किया जा सकता है प्रॉब्लम, isn't it guys? चलो good. I can see the response. I think everything is going fine, right? चलो great. आगे बढ़ जाते हैं. Next problem we'll take. Okay. A cone of base radius R and height is given, right? And is located in a uniform electric field. ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. This is placed in a uniform electric field, ऐसा बोल रहा है वो. ठीक है, parallel to its base. Parallel to its base. The electric flux entering the cone is electric flux. तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ठीक है. अब देखो ध्यान से, कोन तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? दिस इज द कोन. और अगर ऐसा इमेजिन नहीं कर पा रहे, आई हैव द ओरिजिनल कोन फॉर यू गाइस, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा कोन है, राइट? दिस इज द कोन.
आई थिंक इट इज नॉट विजिबल बिकॉज बैकग्राउंड इज ऑल्सो व्हाइट. तो ऐसा दिखाते हैं, चलो अब दिख रहा है ना, ये कोन है, isn't it guys? दिस इज द कोन. इस कोन का जो बेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू दैट, ऐसा कुछ है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द बेस. तो इसको ड्रॉ करते हैं एक बार. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, पैरेलल टू द बेस, है ना? फ्रॉम द बेस कैन यू टेल व्हाट इज द फ्लक्स? इट विल बी जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इट, राइट? तो इसमें से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा. ऐसा भी देख लो कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, एरिया वेक्टर फॉर द बेस, राइट? वो सर्कल है जो, एंड दे आर हैविंग 90 डिग्री एंगल, isn't it? They are having 90 डिग्री एंगल. यहां पे आ जाएगा E dA cos 90 and that will become 0. ठीक है, तो इससे तो 0 होगा. मीन्स वट एवर फ्लक्स इज देयर दैट इज फ्रॉम द कर्व्ड सर्फेस ऑफ द कोन. ये वाला जो सर्फेस है ना, आप यहां से देखो, ये है उसका कर्व्ड सर्फेस. नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, isn't it? It looks very complicated, but there is a short trick. शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब? यही कंसेप्ट है, ऐसे ही करते हैं इसको. देखो ध्यान से, इफ आई अज्यूम कि ये तो मेरा कोन है, राइट? दिस इज द कोन, राइट? दिस इज द कोन. इफ आई वांट कि इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, हाउ विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया? बताओ. प्रोजेक्टेड एरिया विल बी अ ट्राइंगल, है ना? इसके सामने एक ट्राइंगल रख दो, ऐसा सेम डायमेंशंस का, isn't it? एक ट्राइंगल रखा. इफ ट्राइंगल से the number of electric field lines, let's say they are flowing at 5 electric field lines are flowing from the triangle, then how many electric field lines will flow through the curved surface? 5 only. अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, देखो ध्यान से. सो दिस इज अ कोन. इसके सामने तुम इमेजिन करो एक ट्राइंगल रखा हुआ है ऐसे, सेम डायमेंशंस का, राइट? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है, और लेट्स से 5 लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस होते हैं फ्रॉम द ट्राइंगल. तो इससे कितने क्रॉस होंगे फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस? 5 ओनली. एंड वी नो फ्लक्स इज जस्ट काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब क्या है? whatever flux will be there from that triangle, जो 2D शेप हमने इमेजिन किया, सेम फ्लक्स विल बी फ्लोइंग थ्रू द कोन. तो इससे प्रॉब्लम बिल्कुल आसान हो जाता है, राइट? सो व्हेनेवर यू हैव एनी कर्व्ड सरफेस, आपको क्या करना है? प्रोजेक्टेड एरिया लेना है. तो ट्राइंगल का प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया? सॉरी, कोन का प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया? ट्राइंगल, isn't it? स्फीयर दिया होगा, हेमिस्फीयर दिया होगा, इट विल बी सर्कल, द प्रोजेक्टेड एरिया, राइट? देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे अब? इसको बस हमने ट्राइंगल ले लेना है. तो लेट्स से आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, तो मुझे एक ट्राइंगल ऐसा दिखाई देगा, राइट? हाइट विल बी h, और बेस इसका हो जाएगा कितना? r इज द रेडियस, राइट? तो बेस विल बी 2r, है ना? एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स फॉर दिस. तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कोन विच इज ट्राइंगल. तो E इंटू, अब इसका एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू 2r इंटू h, 2 और 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? EHR, है ना? ये आ गया इसका आंसर. तो देखो, क्वेश्चन लुक्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है, इफ यू कैन थिंक कि फ्लक्स होता क्या है, द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, तो यू कैन डू इट लाइक दिस. ओके, आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ. चलो लेट्स मूव अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. ठीक है, he is asking the system of 3 charges will be in equilibrium if Q is. अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? system of the charges is in equilibrium, मतलब each and every charge is in equilibrium. अगर system equilibrium में है, मतलब एक एक चार्ज जो है वो equilibrium पे है, राइट? अब देखना ध्यान से, how to do this one. तो उसने क्या बोला? 2 इक्वल चार्जेस Q है ना? दिस इज कैपिटल Q, और यहां पे एक और कैपिटल Q चार्ज है इस तरफ, isn't it? He says a charge small q is placed at the center of the line joining these two charges. तो मान लो ये इसका लाइन ज्वाइनिंग है, एंड लेट मी कीप स्मॉल q बीच में रख लेते हैं. आई थिंक ये बीच में ही है ना? चलो, स्मॉल q. तो अगर टोटल लेंथ इज l, लेट्स अज्यूम दैट टोटल लेंथ इज l, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया? ऑब्वियसली l/2, है ना? ये लेंथ कितना हो गया? l/2. ग्रेट. अब देखो, वी हैव टू कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ ईच एंड एवरी चार्ज, है ना? तो इस बेचारे को पकड़ देते हैं, ये वाले चार्ज को. इससे पूछते हैं क्या तू इक्विलिब्रियम पे है? ये बता देगा, है ना? हमारा काम आसान हो जाएगा. तो क्या तू इक्विलिब्रियम पे है? पूछो इससे, बताएगा ये. इट विल से कि देखो, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपने पॉजिटिव लिया इसको, इट इज रिपेलिंग मी, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इट इज ऑल्सो रिपेलिंग मी. तो ये इक्विलिब्रियम पे तो कभी नहीं आ पाएगा,
isn't it guys? It will never be in equilibrium क्योंकि ये दोनों ही इसको रिपल कर रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग, दिस Q हैज टू बी नेगेटिव. पहली बात, ये नेगेटिव ही होगा, बिकॉज देखो अगर ये नेगेटिव होगा देन इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट और इट विल ट्राई टू रिपेल इट, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा ना. इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो. इट इज ओनली पॉसिबल इफ Q इज नेगेटिव. तो दो ऑप्शंस तो आप हटा दो यहां से, C और D. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. Q हैज टू बी नेगेटिव, सो इधर इट विल बी -Q/2 और इट विल बी -Q/4. अब मैग्नीट्यूड की बात है, जस्ट राइट डाउन द फोर्सेस. तो आई जस्ट ड्रॉ द सिचुएशन ऑफ दिस बेचारा Q, है ना. इस बेचारे Q का सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस Q इज हैविंग अ रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस Q, है ना. तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस? L, है ना. L है. तो हाउ मच विल बी द मैग्नीट्यूड? इट विल बी KQ² डिवाइडेड बाई L². दैट्स इट, है ना. KQ² डिवाइडेड बाई L². Also, this Q is having an attraction due to this charge. -Q जो आपने रखा हुआ है ना, तो इस तरफ -Q वाला एक फोर्स लगा रहा है, and that force will be how much? K small q. देखो मैंने डायरेक्शन ले लिया है, तो अगेन आई एम नॉट राइटिंग द माइनस, है ना. K small q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज L/2. तो L/2 का स्क्वायर मीन्स L² डिवाइडेड बाई 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर, isn't it? And then we have to just equate them. इन दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट कर दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स हैज टू बी 0, isn't it? चलो, K और K कैंसिल, Q और Q कैंसिल, isn't it? And we want to know how much is this small q. L² is also cancel. तो क्या आ जाएगा? देखो small q will be equal to Q/4, है ना. small q will be equal to Q/4 and I have already given a thought about plus and minus, और ये माइनस होगा मुझे पता है. So what is the correct answer then? -Q/4, isn't it? और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये भी इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा. You can just cross check, सेम चीज होगा ना उसके लिए भी. Similar analysis for that also. Okay? चलो guys, so just check for one charge, that will be enough. चलो आगे बढ़ जाते हैं. Answer is -Q/4. It was also good question. Yes, this is from electrostatic energy. चलो try guys. Anyone with the answer? So he is saying that in this triangle, right, there is a right angle isosceles triangle. Side is A. So this side is A. ये वाला side A है, तो ये वाला side भी A होगा, isosceles है. So how much about this side? √2A. ये वाला side हो गया √2A. Simple thing, right? अब देखो, he is asking net electrostatic energy of the configuration has to be 0. Then what should be the value of Q? कितना होना चाहिए Q? Okay. अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल एनर्जी. वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गो हैंड इन हैंड, राइट. सिंपल सेम फॉर्मूलास यूज होते हैं दोनों में. तो देखो, हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर ऑफ टू चार्जेस? एक तो ये वाला सिस्टम है Q and plus Q. इसके लिए जो एनर्जी होगा, हाउ मच विल बी दैट एनर्जी? आई एम राइटिंग हियर. ओके, सो एनर्जी फॉर दैट यहीं पे लिख लेते हैं. चलो, सो एनर्जी फॉर दिस सिस्टम विल बी Q small q डिवाइडेड बाई A. इतना हो जाएगा, है ना. Q small q डिवाइडेड बाई A, डिस्टेंस इज A. ठीक है. व्हाट अबाउट दीज टू चार्जेस? ये दोनों जो है +Q and +Q, इनका एनर्जी हो जाएगा K small q² डिवाइडेड बाई A, है ना. Q into Q डिवाइडेड बाई A, डिस्टेंस अगेन इज A ओनली. एंड व्हाट अबाउट दीज टू चार्जेस नाउ? Q and Q, ये वाला हो जाएगा Q small q डिवाइडेड बाई, नाउ द डिस्टेंस इज √2A, राइट. और अब हमें टोटल करना सबको. सो दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस विल गिव यू द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. बट इस एनर्जी को क्या करना है अभी? 0. तो देखो, स्लाइटली आई एम डूइंग मॉडिफिकेशंस. लेट्स टेक आउट K small q/A फ्रॉम दीज 3, है ना. इन तीनों को साथ में लिखो, एड देम. K small q/A को बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? देखो, आई एम टेकिंग K small q/A आउटसाइड. यहां पे क्या बच गया? Q प्लस व्हाट इज रिमेनिंग हियर? स्मॉल q, राइट. स्मॉल q बच गया यहां पे, प्लस व्हाट अबाउट दिस KQ. तो K तो बाहर आ चुका है, स्मॉल q भी बाहर आ चुका है, जस्ट Q डिवाइडेड बाई √2, ये आ गया, है ना. एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 0. तो आपको कुछ भी नहीं करना, दिस शुड बी 0, राइट, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता. K का कुछ वैल्यू होगा, स्मॉल q का कुछ वैल्यू होगा,
ए का भी कुछ वैल्यू होगा, सो दिस हैज टू बी 0। तो यहां से आप सीधा लिखो q प्लस स्मॉल q प्लस q बाई √2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट दिस एज द आंसर बी, -2q अपॉन 2 प्लस √2। हो जाएगा ना ये? डन? ओके गुड। जस्ट इसको सॉल्व करना है, राइट? साइड चेंज करना है, यू विल गेट दिस एज द आंसर। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू शुड रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज, राइट? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या सो दिस इज सेम वन। ओके, दिस वन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ही इज सेइंग कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यहां पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, इफ यू आर नॉट एबल टू सी दैट, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर, E इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप। E नॉट एक्स मतलब कौन से डायरेक्शन में है वो? आई कैप डायरेक्शन में। नाउ देखो, फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, ये वाला जो एरिया है, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, राइट? फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एट शोन इन द फिगर ड्यू टू दिस फील्ड इज। ध्यान से सोचो, हाउ डू वी कैलकुलेट फ्लक्स? हाउ डू वी कैलकुलेट फ्लक्स गाइस? एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, है ना? ये फॉर्मूला है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मुझे पता है क्या? यस, आई ऑलरेडी नो दैट। बट क्या एरिया वेक्टर पता है? नो, दैट इज नॉट नोन टू मी, है ना? यू मस्ट हैव स्टडीड इन बेसिक मैथ्स, है ना, कि हाउ डू वी कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये वाला साइड, लेट्स से दिस साइड इज ओ ए वेक्टर, है ना? ये वाला साइड है ओ ए वेक्टर, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर, इजंट इट? So to find out area, we just take cross product of this OA vector cross OB vector. ये आपने पढ़ा होगा, राइट? वेरी बेसिक इक्वेशन। ट्राइंगल के लिए क्या हो जाता है? हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। तो यहां से अगर मॉड कर लो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड, है ना? और जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट, यू विल गेट एरिया वेक्टर। तो कर लेते हैं ट्राई, है ना? देखो, दिस पॉइंट इज हैविंग द कोऑर्डिनेट 0, a, 0। ये यहां के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड दिस इज द ओरिजिन। तो इफ आई एम राइटिंग ओ ए वेक्टर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। आता है ना ये तो लिखना सबको? चलो ग्रेट। सो इफ आई एम राइटिंग ओ ए वेक्टर, इट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। तो क्या बच जाएगा? देखो, 0 - 0, a - 0 मतलब a j कैप। ये y में है ना, ये y में है a, सो a j कैप। इतना ही आएगा इसमें। तो z वाले भी 0 हैं, x वाले भी 0 हैं, isn't it? Similarly, if you write OB वेक्टर, तो आप क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। तो ये क्या आ जाएगा? ये देखो, पहला वाला क्या है? ai कैप, है ना? j में क्या है? दोनों में 0 ही है, तो प्लस a k कैप, ये आ जाएगा, है ना? ai कैप प्लस a k कैप। नाउ दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ OA एंड OB। नाउ आई वॉन्ट एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के लिए क्या करेंगे अब हम? एरिया वेक्टर का फॉर्मूला मुझे पता है, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ OA एंड OB। हाउ डू वी कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट? ऐसे कुछ, देखो, I लिख लो, J लिख लो, K लिख लो, देन राइट डाउन कोफिशिएंट ऑफ I J K फॉर OA फर्स्ट, क्योंकि OA क्रॉस OB है, तो पहले OA का लिख लेते हैं। तो OA में I का कॉम्पोनेंट क्या है? 0, isn't it guys? 0, प्लीज रेस्पॉन्ड। हाँ, J का कोफिशिएंट क्या है? A, तो यहां पे A लिख लिया। What about K का कोफिशिएंट? अगेन 0, ठीक है? OB वेक्टर, OB वेक्टर में I का कंपोनेंट इज A, J का कंपोनेंट फिर से 0 हो गया, K का कंपोनेंट इज अगेन A, राइट? नाउ जस्ट टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? कैसे सॉल्व करते हो आप इसको? देखो, इफ आई वांट I, पहले I का कोफिशिएंट अगर चाहिए, तो आई जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू माइनस दीज टू, तो क्या बच जाएगा? A स्क्वायर, ठीक है? I इंटू A स्क्वायर माइनस J। अगर आप J चाहते हो तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, वो 0 ही आ जाएगा। देखो, 0 इंटू A, 0 इंटू A, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया। J वाला टर्म इज 0 प्लस K इंटू K में क्या हो जाएगा? ये तो गया दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा माइनस A स्क्वायर। सो योर एरिया वेक्टर, DA वेक्टर और A वेक्टर जो भी आपको लिखना है, राइट? A वेक्टर विल बी गिवन बाय A स्क्वायर I कैप प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, है ना? दिस इज माइनस A स्क्वायर K कैप। नाउ दिस इज माई एरिया वेक्टर। अब काम बहुत ज्यादा आसान है। नाउ यू जस्ट हैव टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड एरिया वेक्टर। कहां गया वो फॉर्मूला? हाँ ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट एक्स आई कैप, है ना, ई नॉट एक्स इंटू आई कैप। तो देखो ध्यान से, अब इसका आप इसके साथ ले लो डॉट प्रोडक्ट, इजंट इट? ये x नहीं है एक्चुअली, x इज एक्स्ट्रा थिंग रिटन हियर, x नहीं था यहाँ पे, ये आई कैप है ओनली, राइट, ई नॉट आई कैप ओनली। तो जस्ट आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। सो ई नॉट आई कैप डॉट, अगर ये मैं फ्लक्स लिख रहा हूं, राइट, सो फ्लक्स लिख रहा हूं, ई डॉट ए आ चुका है यहाँ पे, ई नॉट आई कैप डॉट एरिया वेक्टर, मतलब ये वाला है ना, ए स्क्वायर आई कैप माइनस ए स्क्वायर के कैप। ठीक है, ये आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई डॉट आई विल बिकम 1, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, के वाला, सिर्फ दिस एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड, आई हो जाएगा गायब, बिकॉज आई डॉट आई इज 1। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? ई नॉट ए स्क्वायर, है ना, ई नॉट ए स्क्वायर, बी इज द फाइनल आंसर। वो एक्स था नहीं वहां पे, राइट, एक्स कैप के जगह पे वो आई कैप था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो फाइनल आंसर इज व्हाट गाइस? ई नॉट ए स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दैट? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट द एरिया वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दैट्स इट। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू पिक द पेन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। इसमें बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए ऑफ द गॉस लॉ। तो जब आप गॉस लॉ लिखते हो, राइट, लेट्स से देयर आर 3 चार्जेस, जो भी हैं, गॉस लॉ जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी ए, ऐसा लिखते हैं ना, E डॉट डी ए यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते हैं। इफ आई वांट व्हाट इज Q एनक्लोज्ड, तो इस डायग्राम से क्या आ जाएगा? वो Q1 प्लस माइनस Q1, तो Q एनक्लोज्ड 0 आ रहा है ना। इफ यू वांट Q एनक्लोज्ड, यू ओनली टेक दीज इनसाइड चार्जेस, बट you should know that this electric field is due to all charges. It is due to Q1 minus Q1 and also that Q2. तो ये आपको बेसिक सी चीज है गॉस लॉ की, you should know this and they can ask this in objective like this problem, right? तो जो Q enclosed होता है that is definitely just the charge inside the Gaussian surface, but जो electric field होता है that is due to all charges in its vicinity. Okay, are we clear on that? Yes, great guys, great. चलो आगे बढ़ते हैं, next problem. Okay, a semicircular ring radius is given 0.5 meter is uniformly charged with a total charge of this much. Total charge is given 1.5 into 10 power minus 9 coulomb. Okay, the electric potential at the center of this ring is, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। So he is asking electric potential, not the electric field, right? ये ध्यान रखना, read the question very carefully, electric field मत निकाल देना। तो देखो, he is saying there is a semicircular ring, ऐसा कुछ ले लिया, right? And this is having a radius of 0.5 meter. चार्ज कितना है इसके पास? इतना, 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb. ठीक है, great. At this point, I want to know how much is the electric potential. If you remember, you must have done this for electric field. देखो, electric field is a vector quantity. तो आप electric field में क्या करते थे? I'll just give you an idea for vector quantity. What you will do is, you will take an element, right? किसी एंगल थीटा पे जाके ऐसे d थीटा का एलिमेंट लेते हैं। दो people remember the results, that is also good. But ठीक है, this is the basic method, right? Then we write कि यहाँ पे कितना चार्ज है, isn't it? dq charge. Then because of that dq charge, at this point electric field will be something like this, है ना? तो k dq divided by r square, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। And then we will say कि अगर एलिमेंट चेंज करते जाएंगे, the direction of electric field also will change, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, isn't it? Those things are not required here. Why not required? Because this potential is not the vector quantity, it is scalar quantity. बहुत आसान है ये, राइट? इट इज वे टू इजियर टू कैलकुलेट पोटेंशियल इन दिस केस देन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कैसे कैलकुलेट करना है दोनों चीजों को, राइट? दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहां पे ऐसा बोलते होगे ना कि दिस कॉम्पोनेंट विल गेट कैंसल्ड आउट, ये वाला कैंसिल हो जाता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल गेट इन दिस डायरेक्शन। अब देखते हैं अगर पोटेंशियल निकालना है, देन हाउ विल डू दिस।
एज आई सेड पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, राइट? इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए. लेट्स ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्मॉल चार्जेस. ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल चार्जेस में तोड़ दिया हमने. बेसिकली दैट वी डू इन इंटीग्रेशन ऑल्सो, राइट? आई एम ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम इंटीग्रेशन, जरूरत नहीं इंटीग्रेशन का. इफ यू टेक स्मॉल स्मॉल चार्जेस, लेट्स से ये सारे चार्जेस डी क्यू के हैं. ओके, डी क्यू चार्ज है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑल द चार्जेस फ्रॉम दिस पॉइंट? ऑल द चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर ओनली, है ना? तो तुम इवन इफ यू राइट 1000 टाइम्स के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर, ऐसे कंटिन्यूस, राइट? सारे स्मॉल चार्जेस के लिए व्हाट विल हैपन फाइनली? ये सब ऐड ही तो हो रहे हैं, राइट? इफ यू टेक के बाई आर कॉन्स्टेंट इंटू डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू, ऐसे चलता जा रहा है. व्हाट विल बी दिस? टोटल चार्ज. तो क्या करना है हमें? बेसिकली वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, बिकॉज ऑल द स्मॉल चार्जेस विल बी एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. तो सिंपल फॉर्मूला है के इंटू क्यू. टोटल क्यू कितना है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई आर विच इज 0.5, है ना? और के का वैल्यू कितना होता है गाइस, बताओ? दिस इज 0.5. के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो देखो ये 10 पावर 9 कैंसिल हो जाएंगे. 1 इज प्लस 1 इज माइनस. 0.5 और 1.5 कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे? 3, है ना? 0.5 3 जा 1.5 इंटू 9, 27 इज द आंसर. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल इन सच केसेस, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड का मेथड वाज डिफरेंट, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बहुत आसान है. ओके, चलो ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ट्राई करो इसको. सो दोज हु नो द रिजल्ट दे विल बी डूइंग दिस वेरी इजीली, है ना? बट थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग सा है. सो व्हाट ही इज सेइंग? ही इज सेइंग देयर इज अ हॉलो मेटल स्फीयर. ध्यान देना, हॉलो, राइट? देयर इज अ हॉलो मेटल स्फीयर. ऐसे ड्रॉ कर लो इसको, मतलब अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. देयर इज नो चार्ज इनसाइड, है ना? रेडियस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर. इसका रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर. एंड देन इट सेज पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट. सरफेस का पोटेंशियल दिया है मुझे यहां का, दिस इज 10 वोल्ट. ही इज आस्किंग पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. ओके, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. पहला ऑप्शन ही 0 है. आई नो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 0. 0 गलत है. देखो ध्यान से, द करेक्ट आंसर इज 10. शॉकिंगली, राइट? थोड़ा सा शॉकिंग होगा कुछ लोगों के लिए. करेक्ट आंसर इज 10. व्हाई इट इज 10? When you take this hollow sphere, right, there is no charge inside and also there is no electric field inside. The electric field inside this hollow sphere is 0. ये तो समझ में आता है ना? Inside the hollow sphere, electric field is 0. अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा. Electric field is given by dV divided by dr माइनस में, है ना? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है ये. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइडेड बाई डी आर. आई एम सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो मतलब ये पूरा चीज 0 हो गया, इजंट इट? कहां पे 0 है? थ्रू आउट द सरफेस और थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो स्फीयर. ये पूरा जो इलाका है यहां से यहां तक, है ना? यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. दैट मीन्स डीवी इज 0, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज 0. चेंज इन पोटेंशियल 0 मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट. ये लॉजिक है यहां पे. सो थ्रू आउट दिस वॉल्यूम, इस पूरे इलाके में पोटेंशियल इज कांस्टेंट. जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अगर यहां पे इट इज 10, देन एट सेंटर इट विल बी 10 ओनली, है ना? इवन इफ आई आस्क कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर यहां से, दैट आल्सो विल बी 10 ओनली. थ्रू आउट द वॉल्यूम इट विल बी 10 ओनली. बट इफ यू गो टू सम पॉइंट आउटसाइड, यहां कहीं, तो दैट विल बी डिफरेंट, राइट? देन यू विल यूज दैट फॉर्मूला KQ by R. ठीक है? So this is the logic and the answer for this question again is 10 volt. Okay, so that's it for today guys. I really enjoyed teaching you people. Please prepare well for your JEE examination. It is very near now, so please revise all the formulas and practice as many as questions you can do. Watch these lectures also, that will be very useful for you. Okay, so this is the schedule of JEE sprint which is going on right now. So in case you have missed any class, right, please go to the YouTube. You can watch these lectures again. Okay, so this is for physics. Let's go to the
Yeah, so this is for the 12th classes, 12th grade, topics. 28th March will be capacitance. These are the list, right? Okay, this is for maths. You can go through this also. And finally, yeah, this is for maths also. Yes, and this is for chemistry. Okay, chalo, you can take the screenshot so that you do not miss any class. Okay, chalo, and finally guys, please download this Vedantu app as I told you in the beginning also, है ना? And yes, like, share and subscribe. Chalo, it was nice meeting you guys. मिलते हैं next class में. Bye bye, signing off.